Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis discussion. तो आज है 26th of August 2024 and we're going to see very interesting articles from the Hindu and the Indian Express. तो चलिए शुरू करते हैं. The first article that we see in the headlines of the Hindu, this is with regard to attacks. Okay, again we'll be understanding with regard to what is happening in Israel. तो यहाँ पे इजराइल ने अटैक किया है लेबनान पे. ओके, सो व्हाई इज इजराइल लॉन्चिंग एन अटैक टुवर्ड्स लेबनान? दैट इज बिकॉज यहाँ पे वी सी दैट हेजबुल्ला, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ मिलिटेंट ग्रुपिंग. ये मिलिटेंट ग्रुपिंग कहाँ पे है? दे आर इन अ प्लेस कॉल्ड लेबनान. ठीक है, लेबनान जो है इट इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इजराइल. तो ये जो हेजबुल्ला है, इट इज सेड दैट दे वर गोइंग टू लॉन्च एन अटैक ऑन इजराइल. तो वो करने से पहले इजराइल ने लॉन्च किया. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव. इस अटैक को कहते हैं प्रीएम्प्टिव, जिससे क्या होता है, बिफोर दे अटैक, व्हेन यू अटैक, ओके, बिफोर यू कम टू नो दैट दे आर गोइंग टू वेज अ वॉर, यू अटैक. दैट इज कॉल्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक. तो यहां पे इजराइल ने किया है a preemptive strike on the Lebanon, southern Lebanon, for against the aiming the Hezbollah. So some more important key facts अगर आपको याद रखने हो. हमास, ठीक है, हमास हमने रिसेंटली देखा है ये न्यूज. दिस इज अ पैलेस्टीनियन militant group, right, that was backed by Israel. It is said even this in terms of Hezbollah, okay, ये भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो सीइंग विद रिगार्ड टू हाउती रिबेलियंस, राइट, ये भी आपने देखा होगा. सो दे कैन आस्क यू, और ये बहुत कंफ्यूजिंग एच से ही है तो कंफ्यूजन हो सकता है. सो रिमेंबर, हाउती जो है ये येमेन में लोकेटेड है. ठीक है, येमेन में लोकेटेड है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू नो. इट इज सेड दैट ये जो मिलिटेंट ग्रुपिंग है, यहां पे भी ईरान ने इनको बैक किया है, एज वी सी फॉर द हमास. नाउ कमिंग टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द एग्जाम, ये इजराइल का मैप, इजराइल के नेबर्स पूछ सकते हैं. तो एक बार ध्यान रखना कि वी हैव द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इजराइल एज इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान. ठीक है, ये चार कंट्रीज आपको याद रखनी है. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इजराइल एंड हियर वी हैव द मेडिटेरेनियन सी. Alright, here we have Gaza Strip, okay, and the region that is, you can say, West Bank, okay, West Bank and Golan Heights. So these are the regions where we used to see the Palestinian people used to settle, right? तो यहाँ पे बहुत सारे we've seen Gaza Strip पे जो हमास located थे, वहाँ पे उन्होंने strike किया. 10-month long war that we have seen in the recent times. So some value addition right now with regard to the recent Lebanon में जहाँ पे Israel ने strike किया है against the Hezbollah militant groups. Let's understand the next article of the day. And this again is given in the Hindu. तो यहाँ पे what exactly has happened? We have the Brazil के foreign minister. He landed in India. Okay, Sunday को आए हैं. So let us see what is important for us in the exam, mainly with regard to India Brazil relations. तो अगर हम relations की बात करते हैं, it is said that 1948 से दोनों countries के diplomatic ties बने हैं. All right, and हम India and Israel are part of many such common groupings. Can you think of any common groupings between India and Brazil? Okay, we have BRICS, right? We have G20. We have G4. G4 क्या है? जो 4 countries है इसमें, that is Brazil, India, Germany and Japan, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं for getting a permanent seat, okay, in UNSC. जो P5 है, अभी सिर्फ 5 countries है. Now they want to expand it. तो ये जो 4 countries है, they are supporting the group of 4. Okay, so Brazil, India, Germany and Japan.
Okay, apart from that we can also talk about International Solar Alliance में Brazil is a part of it. Okay, and many such multilateral groupings भी है, जैसे कि अगर हम United Nations UNESCO की बात करें, WTO की बात करें, right, WIPO की बात करें, that is World Intellectual Property Organization. So many such groupings where India and Brazil have been in close connection. Now Brazil is also important because अभी का जो G20 का प्रेसिडेंसी है that is hosted by Brazil. Okay, G20 that is in the year 2024. Okay, it has gone to Brazil. तो इसीलिए ये याद रखना है, होस्टिंग नेशन ब्राजील है. जैसे इंडिया ने पिछले साल ये किया था, okay, होस्ट किया था. So therefore you need to remember with regard to the Brazil as well. Now getting back to this, we see that now the foreign minister has come and he's having talks with our foreign minister, that is S. Jaishankar, and we're going to discuss on what. Now there was an issue with regard to Sao Paulo. Sao Paulo एक जगह है ब्राजील में जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने एक रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाल के रखा था. सो इसमें 660 such people were caught. Okay, 660 such people were caught, and in this more than 100 are Indians. तो इसके बारे में हम उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, इंफॉर्मेशन देखेंगे what we can do for these Indians that have been stranded in this place called Sao Paulo. अभी ब्राजील का कैपिटल क्या है? What is the capital of Brazil? Brasilia. ठीक है, so they can ask you, quiz you with regard to that, so remember this. Now also let us see the map of Brazil. तो एक ओवरऑल हम इसके रिलेशंस कंप्लीट करेंगे. ब्राजील, इजी ट्रिक फॉर यू टू रिमेंबर कि ब्राजील मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, एक्सेप्ट two countries. Now which are these two countries? One is Ecuador and the second is Chile. ओके, तो आप देखो चिले, यहाँ पे पूरा चिले का कोस्ट है, दिस इज चिले. सो ब्राजील इज नॉट sharing its border with Chile and Ecuador. बाकी के पूरे कंट्रीज, यूरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया, सब कंट्रीज के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करती है. सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर. एक्सेप्शंस याद रखो, बाकी आपको याद ही होगा. इक्वाडोर एंड चिले, एंड देन यू विल रिमेंबर व्हाट इज द बॉर्डर दैट इज शेयरिंग. ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. दिस इज विद रिगार्ड टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, लेट्स अंडरस्टैंड द होल एस्पेक्ट. So we have Tamil Nadu का जो pollution board, okay, that is called as Tamil Nadu Pollution Control Board, TNPCB. Now इन्होंने क्या किया है? What it has done is like they have बहुत lenient rules किए हैं for the ईट बनाने वाली फैक्ट्री जो होती है, ब्रिक किन्स कहते हैं इसको, ब्रिक किन्स. ओके, ईट बनाने वाली फैक्ट्री, इनको थोड़ा कंसेशन दिया, एग्जेम्प्ट किया है. तो इसीलिए न्यूज में था. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस होल केस अबाउट. सो हिस्ट्री की बात करें 2022 में, ओके, वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था. इस नोटिफिकेशन में कहा गया था, दिस नोटिफिकेशन मेंशन दैट वी वुड हैव द ब्रिकिन्स, जो ईट बनाने की फैक्ट्री है, ये रेजिडेंशियल घर जो है, हाउसेस जो है, इसके बीच में दे शुड नॉट बी इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 800 मीटर्स. ओके, 800 मीटर के दूरी से, मतलब दूरी से होंगे. दे कुड नॉट बी विद इन रेजिडेंशियल एरिया लेस देन टू 800 मीटर्स. तो तमिलनाडु बोर्ड ने क्या किया, इसके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, इन्होंने किया कि द न्यू वंस कैन नॉट बी देयर विद इन 800, ठीक है, लेकिन पुराने अगर चल रहे, चलो 500 मीटर की दूरी है, कोई बात नहीं, चलने दो. सो नाउ व्हाट दे हैव डन, दे हैव ट्राइड टू मेड इट वेरी लीनियंट. ये रूल्स को उन्होंने लीनियंट बनाए. तो इसीलिए हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस जो ऑर्डर को इन्होंने ओवरटर्न किया. ओके, ये कहा है कि 800 मीटर, चाहे वो नए हो चाहे वो पुराने हो, दे शुड नॉट बी विद इन द विसिनिटी ऑफ 800 meters. Okay, so that was the whole issue about. What is important for us in the exam is about this body. तो अगर हम बॉडी की बात करें, let's understand the whole about the National Green Tribunal. कब एस्टैब्लिश हुआ? ये एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में. और कौन से एक्ट के थ्रू? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इफ यू कैन सी, इट्स अ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2020 से ये बनी है.
राइट? सो व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ हैविंग अ ट्रिब्यूनल लाइक दिस? नाम से पता चलता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा. यस, सो दिस इज मेनली टू डिस्पोज केसेस दैट आर रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट. ठीक है, जो कंजर्व करना चाहते हैं फॉरेस्ट के बारे में, राइट? सो इन दैट केस द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो केसेस है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास चले जाते हैं. सो इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल. ओके, जब हमने फॉर्म किया था 2010 में, हम तीसरी ऐसी कंट्री थे. तो कौन है पहली दो कंट्रीज? वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव न्यूजीलैंड. ठीक है, दीज आर द टू कंट्रीज दैट वर मेनली मेड अ ग्रीन ट्रिब्यूनल बिफोर अस. नाउ इफ एट ऑल वी हैव केसेस इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको 6 महीने के अंदर ओके आपको पूरा डिस्पोज करना पड़ेगा. सो दैट इज हाउ फास्ट ट्रैकिंग होता है इस ऐसे कोर्ट्स में. एंड देयरफॉर वी विल हैव लेस बर्डन ऑन द अदर कोर्ट्स, राइट? एनवायरमेंट के केसेस मेनली ये हैंडल करेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से द मेजर ऑफिस जो सिटिंग होता है ये न्यू दिल्ली में होता है. इसके अलावा वी हैव भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई. तो टोटल कितने सिटिंग्स है? 5 बेंचेस ऐसे होते हैं. न्यू दिल्ली इज द मेन प्रिंसिपल वन. अपार्ट फ्रॉम दैट भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई. सो दिस इज विद रिगार्ड टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. Now this is with regard to drug money. Okay, drug money is endangering security and economy. हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं. A very important fact for us in this article today is with regard to छत्तीसगढ़. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है the consumption of contraband. What do you mean by the word contraband? Contraband का मतलब है वो चीज जो इलीगल है. ओके, वो चीज जो इलीगल है आपके कंट्री में, जिसको बैन किया गया है, बट आप अटेम्प्ट करते हो स्मगल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल drugs, for example some arms and ammunitions, right? So in that case, okay, mostly इस आर्टिकल में ड्रग्स के बारे में बताया गया है, ड्रग मनी के बारे में बताया गया है. So in that case कंजम्पशन जो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैनबिस, गांजा का, यहाँ पे कौन से स्टेट में ज्यादा हो रहा है? छत्तीसगढ़. मोर देन द नेशनल एवरेज. ओके, इफ यू सी छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम या हायर कंजम्पशन हो रहा है कॉन्ट्राबैंड का. नाउ इट इज वेरी सरप्राइजिंग टू नो, बिकॉज अगर हम मैप देखें तो छत्तीसगढ़ जो है एकदम सेंटर में पड़ता है. इट इज नॉट इवन शेयरिंग बॉर्डर्स विद एनी इंटरनेशनल कंट्री. So this has been of course alarming for us, that how Chhattisgarh has been one such region which has higher consumption. The दिखा गया है 4.98%, which is more than the national average. So हमारा प्लान भी है, हमारा रेजोल्यूशन है कि इंडिया विल बी ड्रग फ्री. ओके, बाय विच ईयर? 2047. 2047 में इंडिया वांट्स टू बिकम ड्रग फ्री. उसके लिए हमने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं, एंड द इंपॉर्टेंट वन इज नशा मुक्त भारत अभियान. तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. कंफ्यूजन हो सकता है, सो रिमेंबर दैट दिस इज द मिनिस्ट्री दैट इज implementing this or that has launched this नशा मुक्त भारत. 2020 में ये लॉन्च किया गया था, and the day for drug abuse and illicit trafficking is 26th June. We also know about the World Drug Report जो UN Office of Drug and Crime भी देती है, right? Which talks about drug abuse या drug smuggling कौन से countries में होता है. All of that we have also seen in the recent times. Coming back to this, okay, what is the consequences, okay, of drug trafficking? ये जो कॉन्ट्राबैंड की बात करें, ये इलीगल है, राइट? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये आर्टिकल में बताया है. ठीक है, दिस इज नॉट ओनली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स ऑन द हेल्थ ऑफ द यंगर जनरेशन. ओके, हेल्थ हजार तो होंगे ही, बट इसके अलावा इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज इसका जो मनी है वी आर मेनली यूजिंग द कंट्रीज आर यूजिंग इट फॉर टेररिज्म, फंड करने के लिए. ठीक है, टेरर फंडिंग कहते हैं इसको. तो ये सब करने के लिए मनी जो अर्न करते हैं इस ड्रग ट्रेड से, आप जो पैसा देते हो, खर्चा तो हो रहा ही है, ओके, एक्सपेंडिचर हो रहा है, बट इसके अलावा जो इस्तेमाल होता है वो पैसे का ड्रग्स खरीदने के बाद, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द अदर पार्टी
for illegal activities like terror funding. So all of this is endangering our own national security, our sovereignty. That is why this is a very important cause of concern. So let me proceed to the next article now. And this is with regard to जो recently, okay, Sunday को we had Narendra Modi ji, our Prime Minister, addressing the लखपति दीदीज. तो ये लखपति दीदीज क्या है, पहले ये समझते हैं. ये एक स्कीम है. कैसी स्कीम है ये? 2023 बजट में ये अनाउंस किया गया था, एंड देयरफॉर दिस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2023. Okay, the ministry, we say the nodal ministry is Ministry of Rural Development. लखपति दीदी ऐसा मतलब नहीं है कि वो 1 लाख देंगे लोगों को. Okay, वो क्या कर रहे हैं? ये skills provide कर रहे हैं. Okay, they are providing or training people or women ताकि वो 1 लाख हर साल कमा सकते हैं. दैट इज वाई द नेम लखपति दीदी. ठीक है, 1 लाख पर एनम पर हाउस होल्ड, इतना इनकम बनेगा बाय ट्रेनिंग द वुमन. जैसे कि आप बनाओगे, आप उनको सिखाओगे कैसे LED बल्ब बनाना, ठीक है, प्लम्बिंग का काम सिखाना. सो ऑल ऑफ दीज आर द स्किल्स दैट दे आर गोइंग टू ट्रेन यू, एंड दैट इज हाउ यू गोइंग टू earn out of it. आप empower कर रहे हो women को. You're not giving her a fish, you're teaching her how to catch a fish. ठीक है, that is the difference between the same. Now, अगर हम aim देखते हैं, women empowerment, economic empowerment, financial independence for women in the rural areas. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वही होते हैं जो महिलाएं साथ में आती हैं, अपना रिसोर्सेज भी पूल करती हैं, एंड दे आर एम्पावर्ड, ओके, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एज ऑल्सो. सो दिस इज द मेजर स्कीम ऑफ द लखपति दीदी स्कीम. अगर हम देखें, यहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया था, ओके, इन जलगांव जगह है, तो इसमें मोदी जी ने ये भी कहा कि वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द क्राइम्स. लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज भी बने हैं टू कर्ब द एट्रोसिटीज फेस्ड बाय द वुमेन. EFIR जैसा है, दैट मीन्स नाउ शी डज नॉट हैव टू इवन गो फिजिकली टू द पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट. ये ऑनलाइन भी हो सकता है. सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट हैव बीन टोल्ड इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. Another article talking about the women atrocities या crimes against women की अगर हम बात करें, this was given in the Hindu. तो समझते हैं क्या है पूरा आर्टिकल. So when you must have heard about this in famous निर्भया केस. कब हुआ था निर्भया केस? 2012, right? December 16, 2012, where a physiotherapist was mainly paramedic student. Okay, she was gang raped in Delhi. Okay, it was the news had spread far and wide. Yes, इसके बाद government took strict action with regard to this. उन्होंने एक कमिटी भी बिठाई. तो 2012 में एक कमिटी का कॉन्स्टिट्यूट हुआ. इस कमिटी का नाम क्या है? जस्टिस वर्मा कमिटी. जस्टिस वर्मा कमिटी 2012 में बनी, और 2013 में इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए कि कैसे हम विमेन क्राइम्स को कम कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं. So in that case, okay, what did the committee say? Because अभी क्या, because of the recent rape and murder of the doctor in कोलकाता, RG कर मेडिकल कॉलेज, इसकी वजह से मांग उठ रही है कि डेथ पेनाल्टी को होना ही चाहिए. ये सख्त से सख्त accused को मिलना चाहिए. All of these are in the news, of course. So in that case, let us see what the committee recommended and what did the government do. कमिटी ने, जस्टिस वर्मा की कमिटी ने बताया था कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए. व्हाट इज डेथ पेनल्टी? फांसी की सजा. ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, ये इस कमिटी ने कही थी. नाउ व्हाई डिड द कमिटी से दैट नो डेथ पेनल्टी? बिकॉज दे से दैट डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट और फांसी की सजा इज नॉट क्रिएटिंग अ डेटरेंस. ये होने से क्राइम्स कम नहीं हो रहे हैं. अगर ये बात सच होती तो 2012, बिकॉज इन निर्भया केस जो अक्यूज्ड थे, राइट, जिन्होंने अपराध किया था, उनको चारों को फांसी की सजा दी थी. 2020 में फांसी की सजा दी थी. बट हैज द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन स्टॉप्ड? इट हैज नॉट, राइट. सो इन दैट केस इट इज नॉट क्रिएटिंग अ डेटरेंस. लॉ हमारा ऐसा है कि डेथ पेनल्टी अगर 18 साल से कम है, हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, इट इज मेंशनिंग, ओके, इट इज मेंशनिंग, भारतीय न्याय संहिता बताता है कि रेप under 18 years, okay, for a child, for 18 years below, death penalty है.
ओके, बट द क्राइम्स आर स्टिल हैपनिंग। आसाम में 14 साल की बच्ची के साथ हुआ है, बदलापुर में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। सो द क्राइम्स आर नॉट स्टॉपिंग, राइट? सो डेटरेंस तो नहीं कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा है कि डेथ पेनल्टी को हमने काफी कम किया है। ओके, दिस इज अगेन बाय डेटा वे टॉकिंग। कैसा डेटा? दिस इज सिंस 1980। ओके, जो हम मर्डर रेट की बात करते हैं ये काफी कम हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड, इफ यू से दैट एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑन द अदर हैंड डेथ पेनल्टी, ये इसकी सजा भी कम की है। सो वी आर सीइंग द डेथ पेनल्टी भी कम हुआ है, मर्डर रेट भी कम हुआ है। तो दिस इज इन अ वे टेलिंग दैट कि इट इज नॉट नेसेसरी कि डेथ पेनल्टी से ही क्राइम्स को रोका जा सकता है। ऑलराइट, द अदर एस्पेक्ट्स, ओके, सो अगेन रिमेंबरिंग, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा था कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, पर क्या गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था? द आंसर इज नो। द गवर्नमेंट स्टिल मेड अ लॉ दैट रेप, गैंग रेप, ओके, वाज मेड इनटू द अक्यूज्ड विल बी ग्रांटेड डेथ पेनल्टी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि लंबा सेंटेंस दो, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया? डेथ पेनल्टी अनाउंस कर दी। सो दैट वाज थ्रू एन ऑर्डिनेंस दैट वी सी। The second thing that Justice Verma Committee had recommended, marital rape, यानी हस्बैंड जब वाइफ को रेप करता है, ठीक है, इन इंडिया इज इट अ क्राइम? इट इज नॉट अ क्राइम, ठीक है। इंडिया में क्राइम नहीं है, ओके, बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द रिलेशंस, द रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि रिलेशन डज नॉट मैटर, a rape is a rape and therefore it should be criminalized. But हमारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे हम देखते हैं it is not made a crime. In fact, we are one of the 36 such countries जहाँ पे marital rape is not a crime. Okay, so this is something again that we can remember with regard to what are the laws in our own country. So this is with regard to Justice Verma की कमेटी के बारे में बताया गया है, and we also learned about what are the various laws with regard to crimes against women in our country. So this is again an eye opener. Let us proceed to the next article. So next article जो है it is with regard to classical languages. कितने classical languages है इंडिया में? There are 6 classical languages, ठीक है, 6 classical languages हैं। So कौन से ऐसे 6 classical languages हैं ये जान लेते हैं। That is Tamil, then we have Sanskrit, Telugu, Kannada and Malayalam and Odia. Odia was the last one. तो पहला जो language was termed as classical language was Tamil, ठीक है। 2004 में इसको classical status दिया था। So firstly we will understand what is classical, अगर एक language को classical status दिया जाता है, ठीक है, what should be the criteria, किस basis पे उसको classical status देते हैं, and we'll also see कि कौन से benefits मिलते हैं जब उसको वो status मिलता है, right? Now we will also see with regard to what is the context, पूरा context भी समझते हैं। तो पहला context क्या है कि अभी जो classical languages हैं ये centers मांग रहे हैं additional autonomy, ठीक है, उनको increased financial, increased autonomy चाहिए in this aspect to ensure, to conserve this particular language. Now let's understand कि what or how do they get a classical language tag status, कैसे मिलता है। फर्स्टली जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, इट शुड बी वेरी ओल्ड लैंग्वेज, कितने साल पुराना उनका जो रिकॉर्ड्स हमको मिला है उस लैंग्वेज के, दे शुड बी 1500 से 2000 साल पुराने हमको कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं, लैंग्वेज मिला है, टेक्स्ट मिला है। सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द नेक्स्ट फैक्टर, बहुत सारे उसमें टेक्स्ट मिलने चाहिए, ठीक है, बहुत सारे उसके टेक्स्ट मिलने चाहिए और बाय मेनी जनरेशंस ऑल टुगेदर, okay, many generations altogether. The next criteria जो टेक्स्ट है it should be original, इसको किसी दूसरे कम्युनिटी से बोरो नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, okay? And the last one, it should be distinct from its modern format,
इसीलिए हम उसको क्लासिकल कह सकते हैं, नहीं तो हम उसको मॉडर्न लैंग्वेज स्टेटस देते, राइट। वी कॉलिंग इट क्लासिकल बिकॉज इट्स वेरी डिस्टिंक्ट देन हाउ इट इज प्रेजेंटली देयर, ठीक है। सो दिस इज द 4 क्राइटेरियाज टू गेट अ क्लासिकल लैंग्वेज। अभी सिर्फ 6 है, लेटेस्ट जिसको था वो ओडिया था, पहला जो था वो तमिल था। So benefits क्या है ये भी समझते हैं। Once you get the status, what are the benefits you get? So Ministry of Education, okay, what do they do is they announce 2 major annual international awards. Okay, तो कहीं भी दूसरे कंट्री से भी इसको मिल सकता है, मेनली इफ यू आर अ स्कॉलर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो आपने तमिल में बहुत सारे एक्सीलेंट कुछ टेक्स्ट दिए हैं, ठीक है, तो आपको ये अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड है ये, दैट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उस लैंग्वेज के लिए बना जाता है, ओके, अ सेंटर ऑफ लैंग्वेज। सो फॉर ओडिया, फॉर मलयालम, फॉर केरला, फॉर कन्नड़ा, सो यू सी they are mainly created, okay. Apart from that, University Grants Commission, University या UGC Grants Commission, ठीक है, is requested to create a certain number of professional chairs यूनिवर्सिटीज में, जो अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे भी कुछ कोर्सेज वहां पे दिए जाने चाहिए when that classical, for that classical tag, okay, for that language. So यहाँ पे you need to remember about exam point of view से हमको याद रखने हैं what are the classical languages, किसको पहले मिले हैं, ठीक है, what is the criteria and what are the benefits that they get. So let us proceed to the next article now. This is with regard to Rohingyas. So आज की न्यूज में रोहिंग्यास का जिक्र किया गया है. It is because on 25th August 2017, it was this day that you find बहुत सारे mass exodus, किसको कहते हैं mass exodus, that means बहुत सारे लोग एक ही बार flee करके गए थे, छोड़ के गए थे. Okay, so this happened in a place called रखाइन प्रोविंस, जो म्यांमार में है, ठीक है. रखाइन प्रोविंस में कौन रहते हैं? ये रोहिंग्याज रहते थे. सो दीज हैड फेस्ड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है. सो इस रीजन में जो रोहिंग्याज रहते थे, दे आर एन एथनिक ग्रुप, मुस्लिम एथनिक ग्रुप है ये, एंड दे वर फेसिंग लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन द रखाइन प्रोविंस बाय द म्यांमार गवर्नमेंट. तो इन्होंने क्या किया? दे लेफ्ट, दे फ्लू द कंट्री एंड दे you can say how they have moved in various parts of the regions in the surrounding countries. So Bangladesh में that was a place where they actually major of the Rohingyas had gone. ठीक है. अगर हम देखते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है विद रिगार्ड टू दिस, ओके, वी डोंट वी कंसिडर रोहिंग्यास एज इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशंस, इसको साइन नहीं किया है. व्हाट डू यू मीन बाय अ रेफ्यूजी? अ रेफ्यूजी इज अ पर्सन दैट फेसेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिमिनेशन इन हिज होम कंट्री एंड दैट इज व्हाई ही इज पुश्ड टू फ्ली. इसको हम रेफ्यूजी कहते हैं और वो घर बसाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, ठीक है. तो हमने उस ऐसा स्टेटस नहीं दिया है दैट वी आर गिविंग यू प्रोटेक्शन. नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडिया हैज नॉट साइंड द रेफ्यूजी कन्वेंशन? क्यों हमने साइन नहीं किया ये 1951 का? फर्स्टली बिकॉज जो साउथ एशिया के बॉर्डर्स है, दे आर वेरी पोरस. सो इजी अगर हमने ये रेफ्यूजी स्टेटस ओपन किया होता, देन इन दिस केस वील हैव मिलिटेंट्स आल्सो कमिंग एंड सेटलिंग इन इंडिया, राइट. अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न. वी कैन टॉक अबाउट जो हमारे जो लॉज हैं हम खुद बनाना चाहते हैं. दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर सॉवरेनिटी, राइट. हम अपने जो माइग्रेशन के लॉज है, रेफ्यूजी के लॉज है, वी वांट टू मेक इट आवर ओन एस्पेक्ट. रिसोर्सेज, ओके, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं इन पे स्ट्रेन पड़ते, ओके, देयर विल बी प्रॉब्लम्स विद द नेबरिंग कंट्री. स्पेशली अगर हम देखें जो कंट्रीज दैट आर शेयरिंग दिस बॉर्डर, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज, वहां पे ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना. इसीलिए हम इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी देते हैं. दे आर वेरी डिसएडवांटेज स्टेट्स, राइट, एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. So यहाँ पे strain पड़ता, again there may be clashes, there may be law and order problems, and that is why the reason why we have not signed the refugee convention. So this is with regard to Rohingyas. They can ask you Rohingyas कौन से country से है, okay, they are mainly in the Myanmar province से, ये Rakhine province में रहते थे, and उनका mass exodus हुआ because of the
प्रॉब्लम्स दे फेस्ड, इनको सिटीजनशिप भी डिनाई किया था 1982 they were denied. Since 1982 they don't have a official, they are not recognized as an ethnic group in Myanmar. ठीक है, so that was the reason and problems, and they faced genocide, mass killings भी हुई थी बहुत सारे, and many women and children, many of them fled the country and settled in the nearby countries. Let's proceed to the next article. तो recently Sunday को क्या हुआ, okay, Saturday को क्या हुआ था? The cabinet has approved the unified pension scheme. Okay, cabinet has approved the unified pension scheme. Now this is with regard to the government employees. Okay, government employees को pensions जो मिलती है तो कैसे basis पे उनको मिलता है, that exactly is mainly mentioned in this article. So let's understand about this. और ये effective होगा अगले साल से April 1st 2025 this will be Lagu. This will be effective. So we want to understand about the UPS or the Unified Pension Scheme. So यहाँ पे इस स्कीम में it is so that there will be a guaranteed pension. Okay, 50% आपको पेंशन मिल सकता है of the last drawn salary. जो आपका लास्ट सैलरी था उसका 50% वो लाइफ लॉन्ग आपका मंथली पेंशन बन सकता है. Then you get a dearness relief. अगर okay there are situations in the country कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, right? So इन्फ्लेशन को केटर करने के लिए, टैकल करने के लिए तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ भी दिया जाएगा. Okay, now this is only for your government employees. All right, याद रखना है. Then family pension. Okay, so अगर डेथ हो जाती है उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, okay, जिसके आपको पेंशन मिल रही है, then the family is assured a pension equal to 60% of the employee's pension. So यहाँ पे जब डेथ हो जाती है the family gets 60% of the employee's pension. Then we have super annuitation payout. इसका मतलब है एक लमसम पेमेंट आपको दिया जाता है जब आप रिटायर होते हो, आपको एक पेमेंट दिया जाता है in addition to the gratuity. Gratuity is the payment that is given to you when you complete a number of years. आप बहुत साल काम किए हो, then you get additional income, additional benefits from the company, right? So in that case you are going to get a good lump sum payment at the time of your retirement. And finally minimum at least 10,000 मंथली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, दैट इज फॉर दोज हु एटलीस्ट कंप्लीट 10 years ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस. सो दिस इज इफ यू कंप्लीट 10 years आपको 10,000 पर मंथ इज अश्योर्ड, राइट? सो दिस इन दिस पर्टिकुलर पेंशन स्कीम, इससे पहले यू हैड द एनपीएस सिस्टम. यूपीएस के पहले यू हैड द एनपीएस. तो एनपीएस इज देयर सिंस 21 years. ठीक है, 21 years से ये है, तो इसको रिप्लेस करेगा कौन सा? यूपीएस. ठीक है. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई? ठीक है, तो अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो मेरे सैलरी से 10% चला जाएगा. ठीक है, एंड गवर्नमेंट, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द गवर्नमेंट, सो मेरा एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट आपको 18%, 18.5% ऑफ द सैलरी विल बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. तो ये फंड वो क्रिएट करेगी. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द यूनिफाइड pension scheme that was recently approved by the government for the government employees. Let's understand the last article of the day. So this is not a new article, right? This is with regard to Ramsar sites, and ये mention किया गया था आज के The Indian Express में. So we are going to have a quick view, एक recap भी हो जाएगा हमारे लिए. So if you have not done Ramsar before, this is going to be a very good chance for you to have a quick revision of the same. तो Ramsar अभी की अगर हम बात करें, we have 85 रामसार साइट्स, राइट? 85 कौन से रिसेंटली साइट्स ऐड किए गए थे? नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु में है. देन वी हैव कजुवेली सैंक्चुरी विच अगेन इन तमिलनाडु. तवा रिजर्वॉयर दैट इज इन मध्य प्रदेश. तो ये रिसेंट 82 थे, अभी 85 हो गए. ओके, नाउ व्हाट इज रामसार? रामसार इज अ प्लेस इन ईरान. ओके, तो यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था. ओके, रामसार कन्वेंशन, मेनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. वेटलैंड्स, राइट? लेक्स एंड ऑल ऑफ दोज आर वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, लेक्स, राइट? तो इनका कंजर्वेशन के लिए वी हैड अ कन्वेंशन इन विच ईयर 1971. ओके, बहुत सारे कंट्रीज आए थे, इंडिया भी आया था. इंडिया ने साइन किया, रैटिफाइड दिस इन विच ईयर? इंडिया साइन इन 1982. ओके, सो 10 साल के बाद हम भी इसका पार्ट बने हैं.
इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन एशिया जिसके पास एकदम ज्यादा रामसर साइट्स है. ओके, नाउ व्हाई इज अ साइट डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट? जो साइट पे जब कोई खतरा है, ओके, या उसको कंजर्वेशन करना है, इस साइट्स को हम रामसर साइट्स कहते हैं. द साइट्स दैट रिक्वायर प्रोटेक्शन, इमीडिएट गवर्नमेंट एफर्ट्स, इमीडिएट कम्युनिटी एफर्ट्स, ताकि वो रिजेवनेट, अगर वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम में है, संकट में है, इसको हमको वापस से रिज्यूवनेट करना है, वापस से लाना है. ओके, पोल्यूशन है वहां पे, तो वी वांट टू अगेन protect it, conserve it. That site is called as a Ramsar site. Okay, so it's not a very good thing that we have so many Ramsar sites. That means it's a cause of concern कि हमारे इतने sites को protection देना चाहिए, हमको rejuvenate करना चाहिए. So that is what this Ramsar tells us. Okay, now the question is again, एक report दिया जाता है. Now this is given by the Ramsar Convention itself. That is Global Wetland Outlook. तो ये पूछ सकते हैं कौन देता है ये रिपोर्ट? So the Global Wetland Outlook 2018 में बताया गया है कि 35% ऑफ ऐसे हमारे जो लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ये लॉस्ट हो गए हैं 1970 से लेके 2015 तक. एंड अगर हम देखें व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ दिस wetlands getting lost, completely getting dried up, what is the reason? It is anthropogenic factors, यानी कि human factors के वजह से there are problems and this has led to a complete exhaustion of these wetlands. तो इसको सेव करना very very important. So the other reasons that we talk about, okay, like अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पे फैक्ट्रियां चल रही हैं, ओके, वी आर डूइंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हाउसिंग घर बना रहे हैं, जिसके कारण this has caused problems to the wetland. Further, we are also releasing that industrial pollution to these lakes, to these rivers, so that has led to again polluting them. Pollution is another cause of concern. Invasive species, invasive species का मतलब क्या है? जैसे आप किसी और species को लेके आ रहे हो उस species में जहां पे वो actual उसका घर नहीं है. So this becomes an alien species और ये बहुत तेजी से ग्रो करता है and it causes problems to the species that are actually living in that region. ठीक है, इस species को कहते हैं invasive species and they are introduced artificially mainly by humans. ठीक है, so that is another problems in these wildlife in wetlands. And finally, climate change, okay, the problem of everything with regard to the environment, climate change है ना, तो ये impose करता है temperature changes, जिसके कारण वो उधर की जो biodiversity है वो भी affect होती है. So these are all the problems that we can talk about when we say why the wetlands are going down, are getting lost. इंडिया में हम देखते हैं अभी 85 है, okay, we are largest in Asia. पहला कौन सा था रामसर साइट? पहला रामसर साइट था चिलिका लेक इन ओडिशा एंड राजस्थान का कोलादियो नेशनल पार्क. ठीक है, कोलादियो नेशनल पार्क इन राजस्थान. सो दीज आर द फर्स्ट साइट्स ऑफ द रामसर कन्वेंशन. सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू आवर डिस्कशन टुडे. बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे हैं एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द 20 क्वेश्चंस टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट यू स्टडीड टुडे. थैंक यू सो मच.